See, recently there was this report, World Economic Forum report. So yearly they release their report, Jobs for Tomorrow या Future of Works, जिसमें वो बताते हैं कि कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो आगे सिक्योर रहने वाली है. इस साल की जो 2025 की रिपोर्ट आई है, आई विल बी वेरी स्ट्रेट विथ यू ऑल, इट्स नॉट गुड. Like there will be millions of jobs all around the world which will disappear. बेसिकली ये लोग क्या करते हैं अपने रिपोर्ट में कि ओवरऑल दे चेक कि कितने टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज हुई हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ जॉब्स डिक्रीज होंगी, एंड बेस्ड ऑन दैट वो एस्टिमेट निकालते हैं कि ओवरऑल जॉब इंपैक्ट कैसा रहेगा. दिस ईयर इट्स बैड, लास्ट ईयर इट वाज गुड बट द एस्टिमेशन वाज रॉन्ग, एंड दिस ईयर वी कैन सी दैट मोर देन 14 मिलियंस ऑफ जॉब्स आर लाइकली टू लाइक डिसअपियर दिस ईयर. लेकिन वो कौन सी जॉब्स हैं? एंड आई सपोज यू ऑल आर स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज में जाने वाले हो, मे बी मास्टर्स में जाने वाले हो, मे बी looking for a career switch, and you guys might be wondering that what are the things that you need to take care of, because what is important is that in this job crisis scenario you have to be ready कि कौन सा जॉब बेस्ट रहने वाला है. तो देखो यार, बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबली, देयर आर 4 फैक्टर्स, 4 इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आने वाले. फर्स्ट इज ऑटोमेशन इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट जैसे बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोग मिलकर कुछ काम कर रहे थे. नाउ ऑटोमेशन हेल्प्स देम टू ऑप्टिमाइज दैट टास्क. दैट डजंट मीन दैट दैट एंटायर टीम विल बी लाइक रिप्लेस्ड, बट फ्यूअर पीपल विल बी रिक्वायर्ड. तो यू गाइज अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी यहाँ से कुछ जॉब लिमिटेशन चलेगी, बट AI driven jobs are going higher and higher, and you guys must be very familiar with that कि AI वाली jobs बहुत जाने वाली है. What kind of jobs will be there, कैसे type की skill set require होगी, we will discuss that later in this session, presentation, whatever you want to call it. Then we have minimal impact roles. There are some job roles जिनको कम impact हुआ है, and because आज के time में climate change is a big issue, even though Donald Trump denies that, but climate change is a big issue, and there are companies, in fact more than 54% of the worldwide MNCs are taking steps to improve their ESG score. What is ESG score? ESG means economic, social, environmental, social and governance, in which environmental is a very good impact, very crucial factor which they are trying to focus on. तो environment वाली ऐसी चीज है जिसमें more than 54 countries of, all around the world are trying to focus. Basically what I meant to say is sustainability is also a good field where you can go. अब sustainability के अंदर भी बहुत सारे options आ जाते हैं. Either you can go in energy, you can be a data scientist and apply your knowledge there. Maybe you can go in particle physics and acquire use your data science knowledge there. Doesn't matter. अब मैं इतनी सारी चीजें बता के बोर नहीं करूंगा. These are some of the summaries from the report, and here are some of the jobs that you should be looking forward if you want to play safe. First is cybersecurity professionals. See, one more thing. The pace of this presentations or whatever you want to know, and most of the time of this session we are going to devote to that only. तो जो मेन क्रक्स है अभी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं. तो सम ऑफ द जॉब्स जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में रहेगी, जैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर. सो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट दीज जॉब्स आर सेफ. देन एज आई सेड, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, सो रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स, यू आर गोइंग टू विटनेस कि इस फील्ड में अब ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग बढ़ती जाएगी, बिकॉज फ्यूचर में अब ये बहुत रिक्वायर होने वाले हैं. सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट. Then in digital transformation में भी digital transformation specialist. You might be wondering कि digital transformation क्या होता है. तो basically there are companies जिसको हम लोग BPOs कहते हैं, business process operations. बहुत सारे कंपनीज के बैकएंड के ऐसे टास्क होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही मंडेन हो जाते हैं. सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मींस उनको ऑटोमेट कर देना. एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस. अभी तक क्या हो रहा था कि लेट्स से देयर इज एन इंश्योरेंस वर्क. So there will be a person who will be looking all the papers, then he will be making the judgment कि यहाँ पर हमको इंश्योरेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. This requires a lot of time. और कई बार उनके पास इतने केस आते हैं कि it gets overwhelming. Now just imagine there is a digital transformation. All of this task will be automated and this will be done in fraction of seconds. So काफी time बचेगा, but at the same time it comes at the risk of losing a job. तो ये एक like big वो है. Now there are few things that you need to consider कि कौन कौन से टाइप की jobs profile you should avoid. If you are very passionate, if you are very sure you can do something, you can definitely go for it, but it's not advisable.
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेशन की वजह से, कॉस्ट एफिशिएंसीज की वजह से आपके जो बेसिक लेवल के जॉब्स होते हैं ना, जैसे टीसीएस इन्फोसिस में जो एकदम एंट्री लेवल वाले जॉब होते हैं जिनको आराम से रिप्लेस किया जा सकता है, बहुत ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती है, दीज आर दी जॉब्स विच आर लाइक इन डेंजर। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से कॉल सेंटर्स में आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस को कम कर दिया जा रहा है, ह्यूमंस विल स्टिल बी देयर बट नाउ दे आर ट्राइंग कि पहले एआई चैटबॉट से जितना हो जाए, एआई जो लाइक बात करने के लिए उन्होंने रखा है उससे जितना हो सके दे विल ट्राई कि वहां से ज्यादा हो जाए, बट देयर विल बी ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। उन लोगों की सैलरी ज्यादा रहेगी लेकिन दे विल बी लेस पीपल, सो लेस पीपल विल बी गेटिंग एम्प्लॉयड। देन इकोनॉमिक फैक्टर याद रखना है, सी इकोनॉमिक रिसेशंस के लिए हम लोगों को भी रेडी रहना है, बिकॉज इकोनॉमिक, सी दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आल्सो ड्राइव चेंजेस इन जॉब्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या फैक्टर्स है जो डिसाइड कर रहे हैं। ऑटोमेशन तो है ही, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है। वी कैन सी कि इंडिया का मार्केट अभी लास्ट 6-7 महीने से बहुत गंदा गिरा हुआ था। वाई? बिकॉज इकोनॉमिक फैक्टर इन चीजों को ड्राइव कर रहे हैं विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन जॉब। So these are changing work nature. So digital transformation, as I explained, remote work trend हो रहा है, and then industry trends, rise of e-commerce, automation in manufacturing. So mainly these four parameters are responsible for overall decline in jobs. So far so good. Now we need to know about skill importance and proficiency analysis. If you feel like बहुत fast हो रहा है, then yes, मैं fast कर रहा हूँ because मैं ज्यादा time बचाना चाह रहा हूँ discussion के लिए, because I know कि at the end डिस्कशन के लिए टाइम कम पड़ जाता है। इन केस यू फील लाइक यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू इंटरप्ट, हम लोग उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नाउ समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 4 ऐसी चीजें हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years, एंड दीज थिंग्स आर क्रिएटिव थिंकिंग। सी देयर वाज अ टाइम जब कह रहे थे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जॉब बहुत ही ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंट है, देन ऐसे बॉट्स आ गए जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर वाला भी काम कर ले रहे हैं। तो बात आ रही है कि अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो नई जॉब बताई जा रही थी उसके भी जॉब्स अब लेने लग गए हैं, तो जॉब कौन से सिक्योर है? एंड इट डिपेंड्स हाउ क्रिएटिवली यू थिंक, बिकॉज नाउ डेज द जॉब विल बी हाउ कैन यू पुश द बाउंड्री, हाउ कैन यू मेक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ इट। आज से कुछ साल पहले VFX ads were very rare, like they were very expensive, you have to hire like so many VFX artists, then Nike और ये Deloitte जैसी कंपनीज अपने बड़े बड़े VFX ads बनाते थे। Today we have AI tool, I can just like click the image of my product, upload there, और वो AI ऑटोमेटिकली इसके बढ़िया से VFX बना लेगा, which earlier used to cost thousands of dollars, वो like within few $100 के अंदर वो काम हो रहा है। So जो पुराने के जो रैपिड चीज थी वो अभी के टाइम पे कॉमन होती जा रही है। सुनो एआई से हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सॉन्ग्स बना ले रहे हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू मैटर कि हाउ क्रिएटिवली यू आर एबल टू पुश द बाउंड्रीज टू डू समथिंग बेस्ट आउट ऑफ इट। उस फील्ड में रह के बेटर करना और उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। उस फील्ड में रहकर बेटर करना विल गिव यू अ सेफ जॉब, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करके, विल गिव यू अ लीडर पोजिशन। Then we have AI and big data. We have already talked about it. We have already talked about basic IT skills and cyber security. So outdated skills and minimal proficiency needed, ये वाली jobs थोड़ी खतरे में है, तो थोड़ा सा देख लेना इसका। अब देखो, मैं प्लान कर रहा हूँ कि सीधे लास्ट वाले पॉइंट पे आऊँ, बिकॉज ये इंडिया स्पेसिफिक रहेगा और हम लोग को एक चीज जाननी है कि जॉब्स आर गोइंग टू अपीयर, जॉब्स आर गोइंग टू डिसअपीयर, एंड स्किल सेट जो रिक्वायर्ड रहती है दैट इज गोइंग टू बी चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिसर्च एरिया की बात कर लेता हूँ। फ्यू ईयर्स अगो दे यूज टू हैव फोर्ट्रैन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनफैक्ट मैं भी जब अपने आइजर बरहमपुर वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, आई वाज सपोज टू वर्क ऑन C++, बट मेरे सुपरवाइजर ने बोला नो क्षितिज, व्हाट्स द प्रॉब्लम इज, ये जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है, ये सॉफ्टवेयर केवल कुछ लीनियर कोलिजन के लिए डिजाइन है, हमको इनके लीनियर नॉन लीनियर कोलिजन दोनों देखना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज इस सॉफ्टवेयर के बैक एंड में जाना है और वहां चेंजेस करने हैं। मतलब आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड, बट आई थॉट ठीक है ट्राई करते हैं, एंड देन आई रियलाइज दैट वाज रिटन इन फोर्ट्रैन। So I had to learn Fortran in order to make changes there. Then I had to code in C++, and then I had to code in Python to get those things in visualization. So the thing is कि these things are changing very rapidly. I'm not saying कि सारी चीजें सीख लो, but you should be very ready कि अब क्या करना है। And thankfully these days coding is easier than before. मतलब core analytical thinking is still required, but you constantly need to upskill yourself. नए नए सिंटेक्स सीखना, नए नए तरीके के सीखना कि को पायलट का कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में, एंड अदर थिंग्स। नाउ हियर्स द थिंग,
फ्यूचर जॉब डायनेमिक्स इन इंडिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यहाँ पर से हम लोग अपना थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग अपॉन थिंग्स. अगेन एआई, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, दीज आर द पीपल जिनकी जॉब सही डिमांड में रहेगी. बिग डेटा स्पेशलिस्ट की तो बहुत ज्यादा रहेगी. दिस ग्रीन थिंग्स जो ग्रीन में दिख रहा है, ये तो वेरी वेरी राइज, वेरी हाई राइज, क्योंकि यू ऑल नो वी आर करंटली जनरेटिंग डेटा, अ लॉट ऑफ डेटा, हर जगह डेटा जनरेट हो रहा है. देयर विल बी डेटा इंजीनियर्स रिक्वायर्ड, देयर विल बी डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर्ड, देयर विल बी डेटा एनालिस्ट रिक्वायर्ड. ये तीन क्या होते हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट देम इन डिटेल. देन देयर विल बी क्वांटम इंजीनियर्स रिक्वायर्ड. अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग क्वांटम मैकेनिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, एंड हियर्स द थिंग, quantum computing is supposed to rise about 21% in India. Global rate is 12%, and India's rate is 21%. So, if you are interested in quantum mechanics, quantum information theory, encryption, and all those things, next 5 years is the time, because India is going to see massive scale in the quantum technology, and it's going to be groundbreaking for you guys. I know many of you might be interested in quantum technologies, so that's a plus for you. Also, if you somehow manage to integrate your quantum mechanics knowledge with data science or big data specialization, then it's a big plus, because this is something which is going to be very 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 beneficial. So quantum mechanics की job बहुत important होने वाली है. Then you can see here in orange sector, and this is, I'm specifically talking about India, administrative assistant, यानी कि ट्रेडिशनल रोल्स विद मिनिमल ग्रोथ इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. इनकी जॉब ऐसी है कि ओवरऑल कम होगी, बट बहुत बहुत कम नहीं होगी. सो सी, ग्रीन वन बहुत हाई होगी, सेकंड ब्लू वन हाई होगी बट उतने स्केल से नहीं होगी, ऑरेंज वन कम होगी बट उस स्केल से नहीं होगी, एंड दिस इज द रेड जोन. दिस इज द डेंजर जोन. हाई रिस्क ऑफ ऑटोमेशन, रिड्यूसिंग जॉब अवेलेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल कैशियर्स, खुद सोच के देखो, द गिवन की टेक्नोलॉजी इस रेट से बढ़ रही है, इन फ्यूचर वी वोंट बी नीडिंग एनी कैशियर्स. और कैशियर्स तो उसका एग्जांपल है. बहुत सारे ऐसी जॉब्स रहेंगी, बहुत सारे ब्लू कॉलर्स जॉब रहेंगी जिनको एआई ऑटोमेशन से खतरा होगा. आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कि हाउ लाइक एंट्री लेवल जॉब्स इन इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, ये सब जो मास रिक्रूटमेंट वाली कंपनीज है, इन सब में कितना खतरा हो रहा है. एंड देयर इज अ रीजन कि इन लोगों की हायरिंग में इतना लो, मतलब इतना कम क्यों आया है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर सर्विस प्रोवाइडर. ये लोग बाहर के क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाहर के क्लाइंट को अगर लग रहा है कि वो लोग ऑटोमेशन से अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल गो टुवर्ड्स द लाइक प्रॉफिट एंड ऑल. सो दीज आर द की थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. नाउ मैंने इस हिसाब से प्लान किया था कि 7:15 तक मैं ये वाले जो मुझे प्रेजेंट करना है, ये वाला पार्ट आई विल फिनिश, and then we'll go to one by one and we'll see what are the question you have. It could be regarding whatever I have spoke so far. It could be about your personal question or anything. So let's start with it. गाइस इट्स एन ओपन पैनल. आप इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, इनफैक्ट अगर आप कॉलेजेस देख रहे हैं या आप कोई स्टडी परस्यू इस टाइम पे कर रहे हैं जिससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिस इज अ हाई टाइम. क्षितिज इज हियर, आई एम हियर, वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस. Hello, good evening, Kshitij. Hi Mitesh, how are you? I am a follower of your content for a long time. I am a mathematics graduate. I've just graduated with a BSc degree from Calcutta University, and now I am looking for masters. Now I am pretty much interested in the applied mathematics part. Moreover, in the topic that you are working, cosmology, observational astronomy, and in these aspects. Now I have given the exam that IIT JAM. I have seen that in masters there are not much scope in the IIT to study astronomy directly. You need a BSc physics degree for that, but I want to go to it through the pathway of mathematics only. So I've given the NBHM, and now I've got the call for the written exam at HRI. So I wanted to know about, like, do you know anything about how is that institute, or what type of things they will ask in the exams and all? And the second thing is, what more options do I have? I think Given through JAM, through JAM, through JAM, I am getting a college. Its name is Indian Institute of Educational Science and Technology, IIST Shibpur. I have seen that there are people in there who are working in the field of cosmology and astronomy, and it has the subject too, and it is giving open elective for mathematics students. And there are pretty more colleges like the ISER, TVM, and all those. But I'm very confused regarding the further academic pursuit of mine. So if you can guide, it would be very good for me.
Thank you. Definitely. Given that you have pure fundamental mathematics background and you want to apply that in the field of astronomy or maybe cosmology, I think cosmology and astrophysics would be the better place than astronomy in this case. First of all, I want to ask that have you given JAM physics or JAM mathematics? No, I've given the JAM MA, that is mathematics. Mathematics only. Okay. What I would suggest is that, see, I totally would agree that the best physicists are the one who have good foundation in mathematics, and people like Roger Penrose are from mathematics background. Even my supervisor, Professor Pankaj Joshi, was from mathematics background only. That's where he used topology in the field of manifolds and all. So what I would suggest is that if you are getting like ISERs, those are the best institutes. Given they have mathematics, physics, chemistry, and there are people who are like doing fundamental research there. You will get professors there who have studied like from all around the world, and you will get good letter of recommendation in case you want to apply for PhD. Good thing is IIT application has just started and it's going to end on 15th of April. So that is something that you should be looking forward to. Other than that, you should HRI is a very good institute, by the way. HRI is a very good institute, so you can definitely consider that. I won't consider IITs to be very good in this regard. IITs are good for engineering, but not for fundamental science and mathematics, though there are some good faculties. For example, in IIT Kanpur, there are some. In IIT Delhi and IIT Madras, there are some good faculties. That's true. But not for all the IITs. If you're getting those 3 big 4 names, that's good. Otherwise, don't consider IITs that much. Always prefer ISERs over IITs. Always. That's the holy grail, right? Because ISERs are specifically made for such kind of things. So and if you are looking forward for applied things, so there are many options. You are already might be familiar. Topology is there. Fractional calculus is also there, though fractional calculus is mainly practiced in India and in Africa only, but still that is an option for you. So is there anything specific you want to ask Regarding the subject? Anything like I hope I have like cleared all of your questions, right? Yes, you clear all the questions. That you Okay. have said that I should apply for IAT. IAT, ISER aptitude test. ISER aptitude test is for the bachelor's degree again. Okay. Oh, you are applying for master. Sorry, I forgot that. Yes. So they have just, they take through just, right? And I don't think they take through just for mathematics. There are different exams for all of them. Okay. For physics, they take through just only Yes, IUCAA, ISER and all. Yes, for IUCAA, the exam is INET, and that is like very Okay. core astrophysics. Now, I have just completed mathematics, and I'm not very well versed with those things. I have talked with some people from IUCAA, and they have told me that like just with a mathematics background, it will be very hard to complete the INET course in 1 year. It will be very hard, so almost impossible. So you should try to go through the pathway of mathematics. But the thing is, they are all very old people, like the age of our professors. So they asked me that they asked me to ask someone who is working in the contemporary scenario of today. So I think you are the best choice for me. Sure. One thing that I would suggest is that you write a mail to Professor Joshi. Professor Pankaj Joshi, he was actually a mathematician who later turned to a cosmologist, and he is the best person to answer that question. And many of his PhD students are from mathematics background. For example, there is Karim Mosani, Dr. Karim Mosani. He was a mathematics graduate, and then he finished his PhD in mathematical cosmology, especially on gravitational collapse. So obviously that could be a very good choice. And to be honest, I'm not very familiar with the entrance exam regarding mathematics because I never gave any mathematics exam. I was from physics background only. So I'm more familiar towards that thing only. Maybe I can help you more towards how can you apply your mathematical knowledge into the field of astrophysics and cosmology. But you can definitely write a mail, either Dr. Karim Mosani, you can search that, Dr. Karim Mosani. I think he's in Germany right now. But you can search it like BITS Pilani Goa. He was in BITS Pilani Goa. So Dr. you can Karim Osani and Dr. Mosani. Pankaj Joshi. Yeah, Mosani. Mosani. Okay, sure, I'll do that. Just in case you can, I'm so sorry, Amitesh. Just in case if there is a name confusion or any number confusion, Kshitij, you can also use a chat and just write over there so that student can easily note it down. Yeah, sure. I'll do that. I think I have answered your question, right? Sure. Thank you. Thank you very much.
Viswaranjan, Dikshant, anybody? So Kshitij, we are getting questions over the chat as well. Fozia has mentioned something. Can you please check it out? Sure. So the question is, hello sir, I'm in 12th grade right now. I want to be a space pilot, astronaut, but I don't know from where to start, like courses, degree, and colleges. I'm pretty sure that I want to get a degree from out of India, like USA and New Zealand, and many other places. Like a little confusing, which one would be best? Can you help me with this, like where to start and all that stuff? See, being an astronaut is a very tough job, and you have to be very lucky. But if you want to pursue there, so what you first have to do, that you need to have a degree in STEM. What is STEM? Science, technology, engineering, mathematics, right? I think it's that only. So basically, you should have a degree in some of those fields, and you should at least have a master's degree. Master's degree is going to help you a lot. On top of that, you should have a very good physical condition. You should be able to like have a lot of logical and analytical problem solving skills, and on top of that, if you have like pilot skills, that would be best. Now that was out of the world. You should be able to fly a fighter jet, though there are some space programs which don't necessitate that, but since the competition is too high, I think like बहुत वही बात है कि करना ही पड़ेगा. I know this girl. So for a long time she is trying to be an astronaut. She's been living in USA. She's trying to get a lot of support. उसने fighter jet चलाना सीखा काफी time से. She got a lot of training, but so far she's not getting any success. The reason being is that astronaut बनना थोड़ा tough है. That doesn't mean you can't. But अभी के लिए वो लोग क्या करते हैं कि they go to like Air Force, और वो Air Force से अपनी recruitment करने का try करते हैं. वन ऑफ द वे इज कि एफकैट वगैरह के थ्रू एयरफोर्स में जाने का ट्राई करो. अलग अलग एप्लीकेशंस निकलते हैं, मतलब इधर उधर हाथ पांव मारने पड़ेंगे if your goal is to become an astronaut. तो इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है, ऑल्दो इंडिया में अब ऐसे मिशंस निकल के आ रहे हैं, बट यू सी बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे और उसमें से कुछ लिमिटेड लोग ही रहेंगे. जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को लाइक अनाउंस किया था. सो देयर आर थिंग्स, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अभी मुश्किल है सीन, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई. देयर आर पीपल, और अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, पायलट वगैरह इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, एंड स्टेम की डिग्री होना बहुत जरूरी है. Fozia, I hope you got your answer. या और कोई confusion है तो आप या तो unmute कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे chat में डाल सकते हैं. Kshitij, we also have a question from Lakshmi Advani and Prabhakar Kumar. Sure. Hello sir, I'm currently completing my 12th. I'm interested in research center. Please guide me what I will do other than BSc and MSc. See, right now you're in 12th, so your priority should be BSc only. Fortunately, these days we have 4 years BSc programs also. And if you are looking forward to go in research, you should opt for that, because not only you will get higher chances to apply to abroad, you will also get better understanding of things. You will also get better research opportunity. During my time, there was no 4 years program, but fortunately there are many, I think Rashmi also knows many colleges which offers a 4-year BSc program. So that would be a good choice. Then you can opt for masters, but it should be in this order. You should, since you are in 12th, though IIT is a good exam, IISER aptitude test that I was just talking about, you should give that exam. If you are able to qualify that, then you should, without any doubt, you should go for the IISERs. Also, IISc takes admission through that, like as per my current knowledge. So IISc is also a very good choice. So there are some good institutes that you can apply for. But if you're not getting admission there, that's totally okay. There are some good private colleges which also offer admission there. So you can totally apply for that. One thing that I would suggest you is that while doing your bachelor's, make sure to have a habit to write mail to the professor. Even though you might not be getting the full crux of the research, just try to apply there. Hi, Nitin, you wanted to say something? Okay, it might be by mistake. Anyway, so we have next question from Prabhakar Kumar. Sir, मेरे मैथ बहुत वीक है, तो मुझे बीटेक सीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सी, पहली चीज तो इट्स नॉट लाइक अ बीमारी कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, वैसे परमानेंट बीमारी. मैथ खराब है तो वो ठीक भी हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मैथ में बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट मैं इतना अच्छा था कि अपना रिसर्च वर्क कर लूँ, वो प्रैक्टिस कर करके ही हुआ था. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सेकंड, यस, कंप्यूटर साइंस में थोड़ी मैथ काम आती है,
बट दैट डिपेंड्स कि किस लेवल की जॉब में जाना चाहते हो. बट गिवन मार्केट सिनेरियो कैसा है, थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, ये सारी ऐसी फील्ड है जिसमें थोड़ी नॉलेज हो तो बेटर रहता है, क्योंकि डीबीएमएस वगैरह कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है, और ये ऐसे फील्ड रहते हैं जिसमें थोड़ा मैथ होना जरूरी रहता है. सो डोंट वरी, मैथ वीक है तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं बीटेक में, उनकी मैथ वीक रहती है, वो प्रैक्टिस कर करके हो जाता है. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट वरी. हेलो क्षितिज. या हाय दीक्षांत. यस, सो मैंने जस्ट अपने 12th के बोर्ड्स दिए हैं एंड मैं अब आगे रिसर्च करियर ही में ही जाना चाहता हूँ. ओके. बट मेरे को जैसे रादर देन प्योर साइंसेस सबको हर कोई यही सजेस्ट करता है कि पहले बीटेक करना, एंड अगर आपका इंजीनियरिंग, मैं पर्सनली इंजीनियरिंग से ज्यादा रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरे को हर कोई यही सजेस्ट करता है कि पहले बीटेक करो, उसके बाद आप चाहो तो एमएस या एमएससी कर सकते हो. तो आपका इसमें क्या सजेशन है कि मतलब मैं डायरेक्ट प्योर साइंसेस में जैसे बीएससी वगैरह में चला जाऊं, या फिर मेरे को पहले बीटेक करनी चाहिए? क्योंकि यही सजेशन होता है कि बीटेक में आपको एक बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, या फिर अगर आपकी बीटेक अच्छी जगह से हुई तो फिर आप बीटेक के साथ भी रिसर्च कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि यू वांट टू गो इन फंडामेंटल रिसर्च या फिर अप्लाइड रिसर्च भी चलेगा? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन फंडामेंटल. फॉर एग्जांपल? लाइक जैसे मेरे को एक्चुअली फंडामेंटल रिसर्च के बारे में आपकी वीडियो से ही पता चला था, तो मुझे वो फैसिनेटिंग लगता है. लाइक मतलब एकदम डीप में जाके, बिल्कुल मतलब हम अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल पीछे जाके सोचते हैं कि शायद से यहाँ से भी, या फिर हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स है उनको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं. तो मुझे जस्ट वो फैसिनेटिंग लगता है. मैंने बहुत ज्यादा भी पढ़ा तो नहीं है वैसे इसके बारे में. ओके, हियर्स द थिंग. फंडामेंटल रिसर्च का सीन ये है कि देयर आर लेस नंबर ऑफ जॉब्स. लेट्स बी प्रैक्टिकल. व्हाट काइंड ऑफ जॉब कैन यू गेट? एट बेस्ट रिसर्च एसोसिएट की जॉब या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब यू कैन गेट इनटू अ कॉलेज. थिंग इज कि कॉलेज बढ़ने की रेट उतनी ज्यादा नहीं होती जितने कंपनीज के बढ़ने की रेट होती है, एक्सेप्ट फॉर क्वांटम इंक्रिप्शन. वो भी थोड़ा अप्लाइड साइड आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स की नॉलेज का. तो फंडामेंटल साइंस में इट्स ट्रू, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जॉब कंपैरेटिवली कम है, एंड यू हैव टू स्ट्रगल अ बिट like longer than other people. If you choose BTech and especially BTech computer science, then उस केस में like वो करूंगा, तो उसमें फायदा ये रहेगा कि कंप्यूटर कोडिंग एक ऐसी स्किल है जो अब हर फंडामेंटल रिसर्चर को सीखनी पड़ती है. डजंट मैटर वो मैथमेटिक्स से हो, फिजिक्स से हो. दैट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव BTech कंप्यूटर साइंस, you already will have a edge towards that. और इंडिया में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज लैक करते हैं जिसकी वजह से फॉरेन के स्टूडेंट से पीछे रह जाते हैं, वो यही चीज रहती है कि वो उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती. तो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को अच्छा कर सकते हो, ये वाली चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी. इसके साथ साथ एक चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा कि इफ यू अप्लाई फॉर बीटेक ना, तो अलग अलग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते रहो करो. जस्ट बिकॉज यू आर इन बीटेक डजंट मीन कि फिजिक्स की इंटर्नशिप नहीं मिल सकती है. बाहर भी बहुत सारे फिजिक्स की इंटर्नशिप होती रहती है, विद इन इंडिया बहुत सारी इंटर्नशिप होती रहती है. आईआईटी मद्रास हो गए, आईआईटी कानपुर हो गए, ये सब की जो फिजिक्स की इंटर्नशिप होती है, सो लोग बीटेक स्टूडेंट्स को भी लेते हैं. उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहता है. एंड इफ यू डू बीटेक तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 4 years यू रियलाइज कि आई डोंट वांट टू गो इन प्योर साइंस, तो प्लेसमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन है. ऑल्दो बीएससी फिजिक्स के बाद भी है कि यू कैन लर्न डेटा साइंस स्किल्स एंड यू कैन गो. मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने भी ऐसा किया है कि जो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में चले गए थोड़ा सा सीख के. यू कैन ऑल्सो डू दैट. बट सी इफ यू आर कंफ्यूज्ड, देन मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि हैव अ डिग्री इन बीटेक, बिकॉज नॉट ओनली इट इज सेफ बट ऑल्सो like you will have programming experience, और programming experience को physics में use कर सकते हैं. और physics although tough होगी, थोड़ा सा मेहनत होगी. see I'll be very practical here कि दो नाव में सवार करेंगे तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी, but there are plenty of students who are doing that. and बहुत सारे अच्छे बीटेक कॉलेजेस है. फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक एस्ट्रोनॉमी क्लब है, वो काफी अच्छा है. दे आल्सो इनवाइटेड मी फॉर अ टॉक. वो मतलब किसी रीजन से जा नहीं पाया बट वो अच्छा है. LNM-IIT का एस्ट्रोनॉमी क्लब काफी अच्छा है. बिट्स पिलानी की अगर हम लोग बात करें तो वहां भी काफी सारे अच्छी चीजें हैं. तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं ही. तो ये सारी चीजें आप लोगों को आप एक बार ध्यान रखो. अगर इसके अलावा कुछ डाउट है तो बताओ. नो, थैंक यू सो मच. वैसे बाय द वे चैट में आई थिंक रश्मि हैज शेयर्ड अ नंबर. तो अगर लाइक कुछ डिटेल्स भी जाननी है, कुछ कॉलेजेस के बारे में भी जानना है, कुछ भी है, तो यू कैन ऑल्सो आस्क हर. सो लाइक आई एम फ्रॉम academia background, I can tell you about research and all, but
अगर बीटेक के बारे में किसी को देखना है या थोड़े अलग अलग कोर्सेज में देखना है, देन रश्मि इज द राइट पर्सन. शी नोज मोर अबाउट दोज थिंग्स देन मी, बिकॉज वो ये सारे चीजों में काफी एक्सपीरियंस होल्ड करती है. तो आई थिंक रश्मि हैज आल्सो गिवन अ नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सो यू कैन आल्सो रीच आउट टू हर. तो वहां पर अगर बीटेक हो गया, ये सब हो गया, तो उसके रिगार्डिंग वो अच्छे से गाइड कर देगी कौन से कॉलेजेस में क्या क्लब्स रहेंगे, कैसे रहेंगे. Okay, thank you. Prabhakar, I have already shared your number. Like, you are looking for the best suggestions for the BTech under your budget. So you can just note down the number. Kshitij, if you have any suggestions, you can please suggest him over here. Else, Prabhakar, you can just give me a text over the WhatsApp. We'll get in touch with you and we'll give you the best options that are available in India. And you can choose the right one. श्योर. सजेशन नहीं, वो जो था वही था, लाइक दैट्स इट ओनली. Yeah, he has asked another question. Please suggest me the best colleges for BTech CS. So that's why I just suggested him. Okay. If he wants that. आई थिंक रश्मि इस बारे में ज्यादा डिटेल में बता पाएगी. एक बार आप लोग कनेक्ट कर लेना इस बारे में, बिकॉज फिर कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करना हुआ वो फिर एक अलग डिस्कशन हो जाएगा. सो प्रभाकर मेक श्योर टू डिस्कस विद रश्मि अबाउट दिस. आप लोग बाद में ये बात कर लेना. Sure. In fact, Lakshmi has some question. Kshitij, if you can answer. Sure. Sir, can I get a job after masters in the field of astrophysics? Because after studies, I want to be stable financially. Here's the thing. Astrophysics में मास्टर्स करने के बाद what kind of job can you get? या तो एल्गोरिदम बिल्ड में, क्वांट में, फाइनेंस में जा सकते हो, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा. सेकंड ऑप्शन ये है कि यू गो फॉर पीएचडी, जैसे बाकी सब करते हैं, पर सिर्फ पीएचडी से कुछ नहीं होगा, गिवन कंपटीशन इतना है. पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक भी करना पड़ेगा, और पोस्ट डॉक करने के बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी, विच इज ओके. वहां से सैलरी सही हो जाती है, बट पीएचडी पोस्ट डॉक में थोड़ा सा सैलरी वाला इशू रहता है. सो वो थोड़ा सा स्ट्रगल का पार्ट रहता है. लक्ष्मी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. तो ये थोड़ा सीन है, बट यू कैन स्टिल कंसिडर परस्यूइंग योर मास्टर्स इन एस्ट्रोफिजिक्स. मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा. हिज वाई, बिकॉज अगर आप उसमें मास्टर्स करेंगे तो आपको लग रहा है कि आपको इंडस्ट्री में जाना है, तो डेटा साइंस वगैरह का आपको 1 साल देकर टाइम देना पड़ेगा. अपनी स्किल सीख के आप स्किल एनहांस करके स्विच कर सकते हैं. तो इन दैट वे एकेडमिया में जाने का भी ऑप्शन रहेगा और ये ऑप्शन भी रहेगा. बट इफ योर प्रायोरिटी इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एकदम तुरंत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देन सॉरी टू लाइक पुट इट दिस वे, बट एस्ट्रोफिजिक्स में मास्टर इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर दैट. Okay, anyone else? Prabhakar again has mentioned one question, Kshitij. So if you can CS, AI, ML and data science, which is better for future. देखो यार, AI, ML and AI, ML वाला जो देखो ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. That would be much better. I mean, Prabhakar, it's all about era, like coming era is all about AI, ML only. डेटा साइंस वगैरह आपका वैसे भी आज की डेट में अगर आप देखोगे, योर डेटा साइंसेस एनी विच वेज वो आज की डेट में ही इनफैक्ट एट प्रेजेंट ही काफी हद तक अलाइंड हो चुका है AIML के साथ. द डेटा साइंटिस्ट, दोज हु आर वर्किंग लाइक इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, अब उनको वो सारी चीजें लर्न करने की जरूरत पड़ गई है. दे हैव स्टार्टेड टेकिंग दैट स्किल्स इनटू इट. सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे AIML को ऑप्ट करोगे तो अल्टीमेटली यू विल कैटर योर डेटा साइंस एज वेल साइमल्टेनियसली. वो उसी में ही इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो अलाइंड उससे हो चुका है. Right. Dikshant Bansal is asking, it would be great if Kshitij could tell about content creation also. See, content creation, if you want, content creation एक ऐसी चीज है ना कि you can all start anytime, whenever you want. उसमें कोई बहुत rocket science वाली चीज तो है नहीं, first of all, but you should know कि why you are making the content. I make content on astrophysics and physics because I enjoy making it. बाकी चीजें आ रही है, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट आई एंजॉय मेकिंग इट. दैट्स द फर्स्ट थिंग, बिकॉज कई बार ये चीज इतनी सोल क्रशिंग होती है ना, यू डोंट हैव एनी आइडिया. आई हैव सीन मेनी पीपल. मेरी एक फ्रेंड है, 70,000 फॉलोअर्स तक शी रीच्ड एंड देन शी लेफ्ट. उसने मना कर दिया, नहीं बनाना. मैं एक पर्सन को जानता हूँ, उनके अभी कुछ 1.5 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं एंड ही इज थिंकिंग ऑफ क्विटिंग. नॉट बिकॉज इतना पैसा नहीं आ रहा है ऑल, बट बिकॉज बहुत ही ज्यादा मेहनत हो जा रही है, बहुत ही सोल क्रशिंग चीज हो जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एंजॉयिंग दैट. सेकंड, अगर एंजॉय करना है तो एक पूरा स्पेसिफिक वे में बनाना पड़ेगा फॉर हुम यू वांट टू मेक कंटेंट. आज से 1 साल पहले मैं कंटेंट उनके लिए बनाता था जो कि एकदम कोर फिजिक्स में घुसे हुए हैं, मास्टर्स बैचलर्स की तैयारी कर रहे हैं. अब मैं कंटेंट उनके लिए तो बना ही रहा हूँ, बट थोड़ा सा जनरल ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ. सो ऑलवेज डिसाइड कि किन के लिए कंटेंट बनाना है और किस तरीके से कंटेंट बनाना है.
ये 3 चीजें डिसाइड होंगी, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। देन उसमें थोड़ा डिटेल में जाए तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से थोड़ी जल्दी रीच मिल जाती है, बट अगर ऑथेंटिसिटी बनानी है, एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना है, तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज अ गुड ऑप्शन, बट टाइम क्रंच है, देन स्टार्ट विद द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। Okay, Lakshmi, what I do in the field of research other than astrophysics to stable financially? अगर रिसर्च ही करना है एंड फाइनेंशियली स्टेबल भी रहना है तो देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन थिंक। फॉर एग्जांपल, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में रिसर्च, अगर रिसर्च करना है, मैं वो बता रहा हूँ, एमएल रिसर्चर्स जो रहते हैं उनको बहुत अच्छा खासा पैकेज मिलता है, और वो मतलब आर&डी डिपार्टमेंट में उनको भर भर के पैकेज मिलता है। एमएल रिसर्चर्स हो गए, उसके बाद क्वांट एनालिस्ट जो रहता है, क्वांट एनालिस्ट को एल्गोरिदम डेवलप करने वाले रिसर्चर चाहिए होते हैं, उन लोगों के फील्ड में काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे काम हो सकता है। इसके साथ साथ मटेरियल साइंस में थोड़ा अच्छे, ज्यादा कंपेरेटिवली ज्यादा फंडिंग आ जाती है। और हम लोग बात करें रिसर्च में ही तो सी फंडामेंटल साइंस की ही प्रॉब्लम, फंडामेंटल साइंस क्योंकि उसका इमीडिएट रिटर्न नहीं आता है तो कोई ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, और क्योंकि कोई ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है तो उसमें नंबर ऑफ जॉब लेस है, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है ना पे करने वाला। हु इज द कस्टमर? नो वन। कस्टमर इज द अदर साइंटिस्ट जो कि रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, बस वही है। और फिर बाद में कोई उसका एप्लीकेशन यूज करे तो वो अलग चीज है। तो ये एक जो विशियस साइकिल बन रखी है ना, सो ओनली गवर्नमेंट डोनर एजेंसीज आर दी वन जो उसमें फंड करती हैं, या फिर कभी कभी कोई प्राइवेट एजेंसी को इच्छा हुई तो फंड कर देती है। तो ये लिमिटेड फंडिंग की वजह से एक मार्केट नहीं बना है उसका अदर देन रिसर्च। Okay, Aman, I don't have any financial issue. I just wanted to study to only get knowledge because I'm interested in fundamental research in multiple subjects. So, what is the best for fundamental research college? If that's the case, Aman, then for you, अगर ISC मिल जाए वहां पर इंटीग्रेटेड BSMS, बेस्ट केस सिनारियो, विदाउट एनी डाउट आग बंद करके एडमिशन लेना है। इंडिया में उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कोई इंस्टीट्यूट। नहीं होता है देन आइजर और नाइजर। नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और आइजर भी सेम वही। आइजर नाइजर दोनों में IIT के थ्रू एडमिशन होता है, वो भी बहुत अच्छे कॉलेज है, बढ़िया लेवल का है। आइजर बरहमपुर में मैंने खुद ने 4 महीने काम किए हुए हैं, बढ़िया जगह। आइजर भोपाल के साथ मेरा एक कोलैब चला था उनके फेस्ट को लेकर, तो आइजर्स बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आइजर्स में भी नहीं होता है तो IIT सोच सकते हैं। आयरनी इसकी IITs को हम लोग इतना हाई रिगार्ड्स करते हैं, लेकिन जब रिसर्च की बात होती है तो उनको हम लोगों को नीचे लिस्ट में रखना पड़ता है। IITs को फिर कंसिडर कर सकते हैं, बट लेट्स बी प्रैक्टिकली, ये एग्जाम डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का नहीं होता है, क्योंकि दीज एग्जाम्स आर वेरी टफ। अगर तब नहीं होता है देन देयर आर अदर कॉलेजेस ऑल्सो जहां से आप 4 साल की BS या फिर 3 साल की BSc अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा, लेकिन 3 साल की हो तो भी चल जाएगा, मैंने 3 साल वाली की थी, तो वो वाली चीज भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप कंसिडर कर सकते हैं। अगेन कॉलेज से रिलेटेड स्पेसिफिक कुछ इश्यूज है या फिर क्वेश्चंस है तो वो रश्मि ज्यादा बेटर तरीके से आंसर कर पाएगी। मैं केवल रिसर्च के कॉलेजेस ही जानता हूँ या फिर रिसर्च के बारे में ज्यादा बता पाऊंगा। कॉलेज के बारे में रश्मि वुड बी बेटर पर्सन। I think Rashmi, second Divyanshi is asking to you. Yeah, I just read. So Hmm. Divyanshi, अभी 10th खत्म हुई है, 11th में you have taken already humanities. अगर आगे UPSC करना चाह रहे हो, yes, UPSC is a tough call, but again till 35 की age तक you still have an open option for it. And I believe you are hardly 16 or 17 right now. तो there is nothing to worry. Means risk नहीं लोगे बच्चे तो वैसे भी it's not possible. अगर zeal है तो आई वोंट सजेस्ट कि मतलब मत जाओ यूपीएससी के लिए, डेफिनेटली ऑप्ट करो। हाँ, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि लाइक यू वांट टू गो विद द सिविल सर्विसेज या आगे जुडिशियल सर्विसेज के लिए जाना है, तो इन दिस केस आई वुड सजेस्ट कि वंस यू कंप्लीट योर 12th, पहले तो अगेन BA LLB विल बी समथिंग दैट यू शुड डू। दैट इज समथिंग दैट इज यू नो अ गुड पार्ट। BA LLB करने से एक तो आपको जुडिशियल या सिविल सर्विसेज के लिए गेट लॉट ऑफ नॉलेज। BA आपका आर्ट्स में ही you get historical things which are going to help you out in upcoming UPSC का exam. So firstly I would suggest कि अभी 11th में join किया है, it's high time कि आप अभी law के लिए एक अच्छा entrance exam crack करने की coaching start कर दो, क्योंकि BA LLB अगर करनी है, integrated law के लिए जाना है, it's better कि तुम्हें अच्छी जगह से opportunity मिल जाए, कॉलेज अच्छा हो जाए, उसके लिए you can start having the law exams की preparation। CLAT है, CLAT को crack करने के लिए अगर आप अभी से preparation start कर देती हैं दिव्यांशी, तो आपके पास 2 साल है पूरे प्रिपेयर करने के लिए। यू विल बी हैविंग लाइक आई वुड सजेस्ट कि अभी 11th से स्टार्ट कर दोगे तो 12th में देयर विल बी वन ऑप्शन कि एक बार आप यू नो अपीयर कर सकते हो, सो यू विल हैव एन आइडिया कि एग्जाम आ कैसा रहा है।
12th खत्म होने के बाद आप फाइनल अपना क्लैट का एग्जाम दोगे, जिसके आपके रिजल्ट्स आउट होने पे इफ यू गेट शॉर्टलिस्टेड एंड यू गेट अ गुड कॉलेज, तो आपके पास एक बैकअप हो जाएगा कि अच्छे कॉलेज की डिग्री आपकी सिक्योर हो चुकी है। उस टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि जब कॉलेज मिल जाए, कॉलेज स्टार्ट कर दो, दैट टाइम यू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशंस, क्योंकि अभी स्कूल है, यू हैव लॉट ऑफ कोचिंग्स, अटेंडेंस क्राइटेरिया, ट्यूशंस हैं, असाइनमेंट्स हैं। अभी से यूपीएससी प्रिपरेशन आप वैसे भी नहीं स्टार्ट कर पाओगे, बट वंस यू गेट अ गुड कॉलेज, साइड बाय साइड आप अपने लिए यूपीएससी के लिए, लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना डे आवर्स में कॉलेज करते हैं, पूरा इवनिंग अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए देते हैं। यूपीएससी डू नीड अ डेडिकेशन। ड्रॉप करने से अच्छा है कि एलएलबी के बाद हम कुछ साल ड्रॉप करके यूपीएससी क्रैक करें। इट्स बेटर आप एलएलबी के साथ स्टार्ट कर देना, दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। उससे आपके पास एक तो ज्यादा टाइम होगा यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के लिए, क्योंकि 4 अटेम्प्ट्स आप दे ही सकते हैं एनी विच वेज, प्लस एज क्राइटेरिया में भी आप फॉल करोगे, आप अंडर 35 में आप दे चुके होगे, तो दैट विल बी अगेन अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। सो फर्स्ट गो विद योर 12th के साथ में अभी से आप लॉ के लिए अच्छे कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना स्टार्ट करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। वंस यू गेट द कॉलेज, स्टार्ट योर यूपीएससी का, लाइक यू विल बी आई बिलीव 21 व्हेन यू गेट योर गुड कॉलेज। 21 साल से अगर आप शुरू करते हो, आप अपने 5 साल आने वाले देते हो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो आप 26-27 में अपना पहला अटेम्प्ट दोगे। 26-27 से 35 ईयर्स तक अगेन यू हैव 7 to 9 ईयर्स, विच इज अ ग्रेट टाइम, एंड उसमें आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी कि यूपीएससी आराम से क्लियर हो जाएगी आपकी। थैंक यू मैम। पर अगर मैं एलएलबी नहीं करती हूँ आगे जाके, तो सिर्फ बीए में भी कुछ ऑप्शंस हैं आगे करियर के लिए? डेफिनेटली बीए में भी आपके पास ऑप्शंस है। जस्ट सेड बिकॉज आपने जुडिशियल मेंशन किया था, तो आई वाज लाइक कि लॉ के लिए जाना चाहिए, बट अगर आप उसके अलावा सिविल सर्विसेज या अदर प्रोफाइल्स के लिए यूपीएससी के थ्रू जाना चाहते हैं, देन टू बीए इज जस्ट फाइन। तो इस केस में यू कैन डू वन थिंग, 12th के साथ साथ आप अभी से थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ना आप शुरू कर सकते हो, एंड बीए के टाइम से ही लाइक फिर तो आप 12th एंडिंग से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इनफैक्ट उस केस में आप अभी से भी बेसिक कोचिंग लेना स्टार्ट कर सकती है दिव्यांशी। तो मैम बीए के बाद क्या ऑप्शंस रहते हैं? बीए के बाद अगेन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दिव्यांशी, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करनी है, सिंस इट्स अ डिफरेंट सेशन एंड देयर आर पीपल वेटिंग, आपने चैट में मेरा नंबर है, मैं एक बार रीशेयर भी कर देती हूँ यहाँ पे, यू कैन जस्ट पिंग मी ओवर देयर एंड हम कल मॉर्निंग में इस पे बैठ सकते हैं। आई गेट यू अलाइन विद द पर्सन जिन्होंने बीए के बाद यूपीएससी आगे क्रैक किया हुआ है। सो देयर आर पीपल विद बी इन टच जो इन सबको ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, एंड मैं उनसे आपका एक बार डायरेक्ट कनेक्ट करवा देती हूँ। सो आई जस्ट डू वन थिंग, आप एक बार चैट में देख लो, अदरवाइज मैं आपको एक बार नंबर ग्रुप में डाल रही हूँ, मैं चैट में, आप वहां से सेव कर लो, जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट। हम कल, आप या तो मुझे उसी सेम नंबर पे आप कल मॉर्निंग में भी अगर मुझे कॉल करोगे 10:30 और 11 के अराउंड, सो मैं आपकी डायरेक्टली बात ही करवा दूंगी कंसर्न राइट पर्सन से, जिन्होंने बीए के बाद यूपीएससी के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं एंड व्हाट दे हैव क्रैक्ड फॉर। आई हैव अगेन शेयर्ड माय नंबर दिव्यांशी। मैम थैंक यू मैम। यू मोस्ट वेलकम। Apart from this, I guess we have Nitin के question है, Kshitij, if you can help them out. Yeah, Nitin, obviously BCA cyber security is a good option. हमने presentation में देखा था कि World Economic Forum ही कह रही cyber security एक अच्छा scope है. Again question वगैरह से related you can connect later with Rashmi कि colleges वगैरह कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, but yeah, BCA cyber security is a good option definitely. Then Prabhakar is asking, sir मेरा PCM है, PTech के बाद और भी अदर बेस्ट ऑप्शन है क्या? हाँ श्योर, बीटेक के बाद भी बहुत सारा ऑप्शन है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लाइक यू कैन आइदर यू कैन स्विच टू कॉर्पोरेट, इफ नॉट रिसर्च में ही जाना है तो उसके बाद भी एमएससी करने का ऑप्शन होता है। 3 साल की बीएससी के बाद प्रॉब्लम ये फिर एमटेक नहीं कर सकते, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, बट इफ यू हैव लाइक बीटेक तो एमएससी भी ऑप्शन है, एमटेक भी ऑप्शन है, और साथ साथ में बाहर के लिए पीएचडी भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ योर रिसर्च प्रोफाइल इज ऑलरेडी वेरी गुड, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर पीएचडीज, दैट्स अ बिग प्लस। आई नो अ गाय जिसने 4 साल की बीएस की और उसको सीधे ही प्रिंसटन में पीएचडी में मिल गया है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। सर जैसे बीटेक के अलावा सर पूछ रहे हैं 12th के बाद क्या कर सकते हैं? 12th के बाद बीटेक के अलावा यार देखो, एक तो So बीएससी basically, वगैरह तो Kshitij, he is from PCM background and अभी 12th इन्होंने I guess complete करी है, तो he want to know कि मेरे पास बीटेक के अलावा और PCM से क्या फील्ड्स निकल सकती हैं for his Yes, ma'am. graduation. या बीसीए एक तो है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बीसीए, एंड बीएससी इज देयर, एंड
आई थिंक 3 है और कुछ है रश्मि जो मैं भूल रहा हूँ. There are multiple options. In fact, आज के डेट में काफी सारी स्पेशलाइजेशन, सब स्पेशलाइजेशन से हटके खुद में भी एक कोर्सेज बन चुके हैं. प्रभाकर, I have already received your text over my number, and if you are free tomorrow around 11:30 or 12, we can definitely connect and have a good discussion on this. जिसमें आपको multiple options पता चलेंगे कि PCM से what you can do and what technical backgrounds you have grown, and आने वाले टाइम में क्योंकि जैसे आज हमने सेशन में भी डिस्कस किया तो कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी आपकी डिग्री खत्म होने तक पे. सो आई हैव ऑलरेडी रिवर्टेड यू ओवर योर व्हाट्सएप, एंड टुमारो इफ यू आर अवेलेबल 11:30 or 12 we can sit for it. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. You're most welcome. Thank you, sir. You're most welcome. All the best. Anybody else, guys? Nitin, Virendra, anybody else? Viswaranjan, you were very excited for the session as well, I remember. So any queries or कोई questions हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप you can unmute yourself or you can just drop over a text. Hello, Kshitij. Yeah, hi Mitesh. Yeah, I have another question that I have just got the mails from Google of Dr. Karim Musani and Dr. Pankaj Joshi. I guess Okay. it is Dr. Pankaj Joshi is in Bhavnagar University right now, University of Ahmedabad. He has studied from Bhavnagar University for his bachelor's, but right now he is distinguished professor at Ahmedabad University. He's a very prominent figure. You can also find his Wikipedia page. Yes, I got that. So while I'm writing the mail, should I mention your name as my senior? or something? I can do that. You can write that. You can give my reference. Not a problem. Sure. Your full name is Kshitij Pandey, right? Yeah, sure. Yes. Okay. Thank you. Okay, no problem. Okay, then. Guys, Do anybody we have else any other have questions? any? Yeah, I was about to ask the same. Anybody else? Any queries? Any concerns? All right, I guess Kshitij, people are done with their queries. I have also shared my number, guys. You can just note it down just in case इसके बाद भी किसी को Kshitij से directly connect करना हो. You can definitely drop a text to me. I can get you directly in touch with Kshitij as well. And any other renowned personality regarding your field you want to talk about. अगर आपकी कोई field से related concerns है, you can just drop me a text. I can get you in touch with those field expertise, just like Kshitij, and they will be more than happy to help you out, and we as a college search will be more than happy to give you the best guidance. Thank you so much for being such a supportive audience, guys.